ओके, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हमने क्या देखा, जब कोई डिजिट यूनिट से कम हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है मैथमेटिक्स में डेसिमल सिस्टम, ठीक है। जब आज हम लोग पढ़ेंगे तो हमने क्या देखा कि जो डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3.46, ये क्या है, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, ओके। The part which lies after the decimal is less than unity. Am I right or not? The part which lies right of decimal is less than unit. Am I right or not? What is the number that is after decimal? That is 0.46, 0.46, and this is less than unit. Am I right or not? And the number which is left of decimal is maybe less than unit or maybe equal to unit. When I said 0.33, this is a number, okay, and after the decimal the number is less than unit, because after the decimal it is the number having the base 10. Am I right or not? When the number having the base 10, that means it will be less than that of unit, okay. Can this number be expressed in terms of, in place of decimal we write 1, and after how many zero are there? 2 0, and 33 upon 1 0. In this form, sorry, 100, in this form this number can be represented. Am I right or not? So observe that decimal system have two part. How many part are there? Two part, okay. One right of decimal and another left of decimal, okay. Decimal number have two part, okay. पहला पार्ट क्या होता है, जो क्या होता है बेटा, राइट ऑफ डेसिमल होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल होता है, ठीक है। जैसे 4.56, अब ये 0.56 क्या है, ये राइट ऑफ डेसिमल है, ठीक है। 4 क्या है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, ठीक है। तो याद रखना, जो लेफ्ट ऑफ डेसिमल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल, नॉट इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। टेल मी इन 4.56 what is the integral part of this decimal number? 0.56. मारो, 0.56. लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मानो ये डेसिमल है, इधर होता है बेटा राइट, ठीक है, इधर क्या होता है, लेफ्ट, एंड द लेफ्ट पार्ट जो होता है डेसिमल के, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो बताओ यहाँ पे 4.56 में व्हाट विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर? 4. Yes, 4 is the integral part of this number, okay. If someone asks you what is the integral part of any decimal number, then what is your answer? The number which lies left of decimal is called integral part of that decimal. Am I clear? Shall I repeat?
simply can I say the integral part? Okay, integral part किसको बोलेंगे? The number which will be before the decimal, which will be before the decimal point. Am I right or not? अब देखो, Yes. ये decimal point है, इसके बिफोर में कौन सा नंबर है? बिफोर में बेटा पहले, तो इस decimal point के बिफोर में कौन सा नंबर है? बोलो। 4 जो ये 4 है क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट होगा। इज इट ओके? Yes. किसी को समझ में दिक्कत? समझ में नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो? इंटीग्रल पार्ट क्या हो सकता है? लेफ्ट ऑफ डेसिमल, जो नंबर द नंबर व्हिच लाइज लेफ्ट ऑफ डेसिमल, दैट नंबर इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट्स, और द नंबर which comes before the decimal point, that is called the integral part. Now tell me 0.56, what is the integral part of this decimal system? 0 0. Yes, everyone right. Now there is another number which lie right of decimal. You can see that here is the decimal point, and 56 is the number which lie right of the decimal. Am I right or not? Yes. Okay. Yes, sir. And the number which lie right of decimal, this is called the fractional part. What it is called? It is called fractional part. Fractional part. Okay. This is called the fractional part. Okay. And tell me, Rosni. Yes, sir. Tell me different types of name of the different types of fraction. How many fraction are there? Proper fraction, improper fraction, mixed fraction. और अब एक चीज बताओ, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? सर डिनोमिनेटर छोटा रहता है। Yes, sir. तू लोग जो है ना बहुत मार खाएगा, ठीक है? तो डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, न्यूमरेटर छोटा रहता है। वैभव, यस सर। यही पढ़ाया था मैं। सर थोड़ा क्या होता है? न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यस सर। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो राइट ऑफ डेसिमल होता है, देखो जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेसिमल होगा तभी तो वो 1 से छोटा होगा, यूनिट से छोटा होगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। याद रखना, जो राइट ऑफ डेसिमल हो, जो नंबर राइट ऑफ डेसिमल हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसलिए तो वो यूनिट से, वो जो डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट, वो यूनिट से छोटा होता है। Am I right or not? For example, here देखो, जो डेसिमल पार्ट के बाद वाला नंबर है क्या है? 0.56, और इस 0.56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो 56 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस 0.56 लिख सकते हैं ना। जैसे 7.24 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 0.24 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. और जो देखो, ये 0 है, ये 7 है, ये क्या है? लेफ्ट ऑफ
डेसिमल पॉइंट है। कहाँ है बेटा? लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, या कहाँ पे है ये? बिफोर डेसिमल पॉइंट है। क्या है? लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट या बिफोर डेसिमल पॉइंट, है ना? तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोले थे? व्हाट इट इज कॉल्ड? क्या बोले थे इसको? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्या है? 0 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। 7 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये, इसको देखो, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब ये क्या है? राइट ऑफ डिसिमल पॉइंट। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं? आफ्टर राइट ऑफ डेसिमल। आफ्टर डिसिमल पॉइंट है ना? आफ्टर डिसिमल पॉइंट है। इसका नाम क्या देंगे हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होगा बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। इज इट क्लियर? और Yes, फ्रैक्शन पार्ट में भी कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। smaller than denominator. अब देखो 0.56 ये क्या है? 1 से छोटा है ना? है कि नहीं है? Yes. 0.56 1 से छोटा है ना? 0.24 1 से छोटा है कि नहीं है? यस सर। है ना? Yes, sir. और जब भी हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्म में 0.56 को इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या करेंगे? 56 डिवाइडेड बाय 1। 1, This is the way to convert the decimal into the fraction. Am I right or not? Yes. यस सर। ये सब पढ़ा दिया था ना, कैसे हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? 56। डिनोमिनेटर क्या है? 100. न्यूमरेटर क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से। Denominator बड़ा है. यही किसका कैटेगरी हो गया? Proper प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी राइट ऑफ डेसिमल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल पॉइंट का, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। एंड द फ्रैक्शनल पार्ट कैसा फ्रैक्शन होगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इज इट ओके? Yes. यस सर। इसको लिख लो, किसी कोई दिक्कत? इरेज कर दो स्क्रीन। मिटा दो। यस सर। ठीक है, अब देखो इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज देखना, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है? 10 के मल्टीपल में इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, सॉरी, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर से इसको लिख देता हूँ। ठीक, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जो इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है।
इंक्रीज इन मल्टीपल ऑफ 10, ओके। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, ठीक है, किसी भी डेसिमल का, वो क्या करता है, इंक्रीज with, okay, increase with the decrease, increase with the decrease, increase with the decrease, okay, of the order 10। अब किसी को ये चीज समझ में आया? नो सर। नहीं आया? चलो 5 6 4.898, ठीक है। अब इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। देखो ये कौन सा पार्ट होगा बेटा, ये होगा इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल, कौन सा पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो इंक्रीज करेगा विद द मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। जैसे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट या प्लेस वैल्यू वंस। यूनिट 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 10। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100 100। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 4। Can 564 be written in this form? यस सर। Yes, sir. यस सर, अब यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे क्या है, यूनिट, और यूनिट में जब क्या किए, नंबर को इस साइड लेफ्ट की ओर इंक्रीज किए, जब हम लोग लेफ्ट के साइड मूव कर रहे हैं 10 का मल्टीपल इंक्रीज कर रहा है, यस सर। 10 into 10 है ना 100। यहाँ पे क्या है 1 में से 10 मल्टीप्लाई किए तो इस प्लेस पे आए, फिर इस 10 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे पहुंचे। तो क्या हो रहा है, जो नंबर हो रहा है इंक्रीज कर रहा है मल्टीपल ऑफ 10 में। यस सर। समझ में आया कि नहीं, समझ Yes, में आया sir. कि नहीं? Yes, sir. सर आ गया। Yes, sir. लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं और हर एक नंबर क्या हो रहा है 10 के मल्टीपल में इंक्रीज कर रहा है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। Yes. क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 10, 5 का प्लेस वैल्यू क्या 100। अगर मैं मानो यहाँ पे 7 रहता तो फिर यहाँ पे क्या होता 7 into 1000 होता कि नहीं होता? हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 100 है, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई करो 1000 आ गया। तो क्या हो रहा है, Yes, sir. जो भी इंटीग्रल पार्ट है वो क्या रहा है इंक्रीज कर रहा है, किसके, इन मल्टीपल ऑफ 10 में। किसी कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। नहीं ना? अगर डाउट है तो बोलो। सर नहीं है। हाँ, नहीं है सर। लिख लिया? यस। Yes. बहुत इंटेलिजेंट हो ना। घर पे जाके तुम लोग नहीं पढ़ते हो ना, सिर्फ यहाँ क्लास करते हो, कुछ याद नहीं रहता है, बहुत गलत बात है ये, ठीक है बेटा? मानव, यस सर। यस तो भी सर। बेटा गुस्सा करने को, लेकिन आप घर पे पढ़ते क्यों नहीं हो? हाँ, Yes, sir. घर पे पढ़ते क्यों नहीं हो बेटा? पढ़ना तो चाहिए ना। और हाँ, यस नहीं पढ़ना चाहिए। सर पढ़ना चाहिए।
नहीं पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या बोल रहा है, इंक्रीज विथ द डिक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10। मीन्स क्या, अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का प्लेस वैल्यू इंक्रीज करो, स्टॉप वीडियो। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का प्लेस वैल्यू इंक्रीज करो तो क्या होता है, नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा, किस ऑर्डर में, 10 के ऑर्डर में। और डिक्रीज कब 10 के ऑर्डर में कैसे करेगा, 10 के ऑर्डर में डिक्रीज कैसे करेगा, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे 10 से। इज इट ओके? जैसे देखो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.898, यस नहीं सर। है? यस सर। हाँ, अब देखो ये क्या है, Yes, डेसिमल sir. पॉइंट यस सर। है ना। यस सर। अब इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, क्या है 10th। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100 100th। 10 100 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स। 1000 1000 है ना। अब देखो एक्चुअल में जब इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इस 8 को, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, मतलब क्या 1/10, क्या होगा 8/10 होगा। हाँ जी, यस सर। यस सर। प्लस 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9/100 100 प्लस, by 100 इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8/1000। एम आई राइट और नॉट? हाँ, यस। ये चीज समझ, ये क्या है, 8 इंटू 1/10 है, प्लस 9 इंटू 1/100 है, प्लस 8 इंटू 1/1000 है। हाँ जी, है कि नहीं है? अब देखो यस सर। इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू। तो 10 इंक्रीज क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू। क्या, प्लेस वैल्यू। कैसे इंक्रीज कर रहा, देखो यहाँ पे 10th था, 100th हुआ, 1000th हुआ, मतलब क्या, प्लेस वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। एम आई राइट और नॉट? बट जो नंबर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद द ऑर्डर ऑफ 10। अब देखो ये क्या हुआ, 8/10, ये क्या हुआ, हम लोग प्लेस वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर क्या कर रहा है, 9/100, छोटा हो रहा 8/1000। नंबर डिक्रीज कर रहा है किसके मल्टीपल में, ऑर्डर ऑफ 10 के मल्टीपल। 10 के। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या हो गया 100, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1000। मानो यहाँ पे एक 7 होता तो आगे क्या लिखते, प्लस 7 इंटू 1/10,000। एम आई राइट और नॉट? यस। तो आपको इस इंटीग्रल पार्ट में कैसे इंक्रीमेंट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे डिक्रीमेंट होता है, समझ में आया? यस सर। अब देखो ये नंबर क्या है, 0.898 है ना। यस सर। यस। तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिख सकते हैं, 898, जो भी फ्रैक्शन के पास काउंटिंग नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में क्या करो, जो डिसमल है उसके जगह पे 1 लिखो, और कितना नंबर है डिसमल के बाद, 1 2 3, 0। ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना। यस सर। अब इसको कोई ऐड करके बताओ, इसको कोई ऐड करके बताओ,
8/10 plus 9/100 plus 8/1000. Please add it. 8/10, 9/100 और 8/1000 को ऐड करके बताओ। जल्दी बताइए। नहीं बताओगे? हाँ जी, Yes, sir. 898 by 1. 1 दोनों सेम है? ये दोनों सेम है बेटा? Yes. समझ में आया? तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करते Yes, sir. हैं फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में और डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ इसको लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. चला Yes, sir. स्क्रीन। Yes, sir. ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल और डिवीजन ऑफ डेसिमल। ओके, क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल और डिवीजन ऑफ डेसिमल। कैसे हम लोग डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 11.43 11.4 है, ठीक है? या चलो 11.3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? सिंपली क्या करो, ये जो नंबर देख रहे हो ना, इसमें से अभी डेसिमल को रिमूव कर दो। ठीक है? क्या करो? डेसिमल को रिमूव कर दो। जब हम डेसिमल को रिमूव करें तो ये क्या हो जाएगा? 11 3 into 4 होगा। Yes, sir. अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4 into 3 452. 4 into 3 2 कैरी 1 452. 5 452 आया। अब देखो Yes, sir. इसमें डेसिमल कितने नंबर के बाद है? डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर के बाद 1 नंबर। जो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दो, इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। जैसे 1.2 इंटू 0.5 क्या होगा? इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 डेसिमल को रिमूव कर दो, ठीक है? 12 इंटू 5 क्या होगा आंसर? 60 होगा। अब देखो Yes, sir. कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 नंबर एक नंबर और एक नंबर यहाँ भी है डेसिमल। 2 नंबर बाद तो टोटल क्या होगा? यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दो तो क्या होगा आंसर? 0.6। 0.60 और डेसिमल के बाद देखो इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके बाद 0.6 डेसिमल के बाद जीरो के बाद कोई नंबर नहीं हो, वो डेसिमल का क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 भी लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? यस Yes, sir. तो मल्टीपल समझ में आया? यस सर Yes, sir. कर लोगे? मैं भी Yes, फास्ट sir. सर ठीक है। अब देखो डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे डिवीजन करना है, ठीक है? जैसे 4 5.25 इसका डिवीजन करना है, ठीक है? ओके, इसको जैसे 5 से डिवाइड करना, ठीक है? हाँ जी यार, बैकग्राउंड से म्यूट कर दो अगर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ठीक है? हाँ जी, 5 से डिवाइड करना कैसे करेंगे? देखो इसको क्या करो, डेसिमल फॉर्म को चेंज कर दो। किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करना है?
फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 4 5 2 5 है। उसके बाद देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 100। 2 नंबर है, 2 जीरो बचा दो। 100। अब इसको डिवाइड करना है 5 से। 5 से। इज इट ओके? कर लोगे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसको 5 से कैसे करोगे? इस डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। कैसे होगा? एक्चुअल में इस 5 का मतलब क्या? 4 5 2 5 5 बाय 100 इंटू 5, यही तो होगा ना? यस सर। हाँ जी। जो डिवीजन होता है उसको हम लोग बेस में लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम आई राइट और नॉट? यस। तो इस तरह Yes, डिवीजन sir. कर लोगे, एडिशन भी कर लोगे कि और बताना पड़ेगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। तो आज आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो इसमें मैं डिवीजन मेथड ये सब छोड़ दिया हूँ, ठीक है? ये आप लोग कर लेना, मैं थोड़ा बहुत बता दिया हूँ, ठीक है? मेन चीज मैं बता दिया, ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। कोई डाउट है आज के क्लास में?